अब क्या है कि आज जितने भी धर्म हैं सब कहते हैं देखो पीछे देखो क्या, हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, ईसा ने किया, मूसा ने किया, है योगा ने किया, फलान ने किया, देखो पीछे देखो, पीछे देख रहे और चल रहे आगे। जब पीछे देखेंगे चल रहे आगे तो ठोकर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, गड्ढे में नहीं खाएंगे। केवल भारतीय योग दर्शन जो कहता है आगे क्या होगा वो जानना जा सकता है। अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखना सुनना संभव है। आपकी भौतिक साइंस कहती है जो शब्द बोला गया वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर प्रॉपर मशीन हो तो उसे सुन सकते हैं। हमारा योग दर्शन कहता है कि शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है। लोग कहता है वो तो फिल्म बन चुकी, रिप्ले दिखाना है। अभी जो घटना नहीं घटी है, अभी जो शब्द बोला नहीं गया है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद, सालों बाद बोला जाना है, वो पहले सुनाई दे जाएगा। टेलीविजन पे जो घटना होती है, जैसे ऐसे मरेगा आदमी तो वैसे दी जाएगी, इस कारण से मैं तो इस प्रकार जब ये ध्यान के दौरान अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखेगा सुनेगा तो इसके कई फ्रेंड्स की जिनका मतलब इसकी जानकारी है तो उसकी मौत दिख जाएगी। वो आया उसको तो जाना है 10, 20, 50 साल, और इस तरह से 10, 20, 30, 40 की दिख गई है तो एक्सेप्शनल नहीं हुआ और ख्याल आ गया तुझे कौन सा रहना है तो दिख जाएगा कैसे में। अब जो अपनी मौत दिखी तो घबरा गया, कोई मरना नहीं चाहता, वो किसी को छोड़ती नहीं। तो इस आराधना से मौत की असलियत मालूम हो जाएगी। जैसे कबीर ने कहा है जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पायो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार जब उसको अपनी मौत दिख जाएगी फिर वो प्रार्थना करेगा आंख बंद करके, और यहाँ वो बैठा है पलक उल्टते इसके सामने आ जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन हो जाएगा। इसके बाद में दोबारा जन्म नहीं होगा। हमारे योग का मूल उद्देश्य साल्वेशन है, मोक्ष है, रोग है ही नहीं। मगर उस हद तक विकसित होने के लिए सारे रोगों का खत्म होना जरूरी है। समाधि जब तक नहीं होगी, धारणा ध्यान और समाधि जब तक नहीं लगेगी तब तक जीवन मरण के चक्कर से पीछा नहीं छूटेगा। तो मैं तो ये काम करने के लिए निकला हूँ रोग सो के, और ये मानव मात्र में होने वाला परिवर्तन है, ह्यूमन बीइंग में। इसमें जाति धर्म राष्ट्र कोई गाला बोला। What Gurudev says is that when you begin to meditate, after a certain point, you will be able to see visions of the future. What the Vedic philosophy says is that, or which even material science says, is that the word that is spoken always stays in the universe, and if you have the right kind of instrument, you can tap into that, which is why you will be able to even see visions of the past, or things that have been said in the past. But what Gurudev says is that in life you're constantly moving forward. So if you're going to talk about what happened in the past in history, like to Jesus or to Ram, Krishna, whatever, the way people, most gurus keep telling, talk about stories of Krishna and stuff like that. So he says as if you're going to constantly talk about the past and move into the future, you're looking back and you're moving, forward. It's bound that you're going to, hit like a roadblock and fall because you're not looking in front of you, you're looking behind. So although during your visions you'll be able to see visions of the past, don't get entangled in that. What is more important is your visions of the future. The meditation will show you events that will happen in the future, what you will be in the future. And during these visions there is a possibility that you might be able to even see death, like deaths of your, like friends, family members. And eventually, at some point, you will also see your own death. You will be able to, you will see the secret of death.
that will be unveiled to you. What is the secret of death? And that is when you will realize yourself that you are never born, you never die, you always are. And that sort of that curtain will be lifted off, and you will realize that you exist here, right here, within you, on this plane, on the seventh plane of consciousness. And that is when you will be free from the cycle of life and death, what we call moksha. So that state of being is called samadhi. That state of nothingness, when you realize that you are nothingness. You never were and you never will be. Right. But you always are. हमारे दर्शन में महर्षि अरविंद ने कहा है कि आराधना के 2 तरीके हैं, एक सगुण उपासक, एक निर्गुण उपासक। गायत्री मंत्र निर्गुण की आराधना जो मुझे पहले सिद्धि हुई, और कृष्ण जो है सगुण साकार की आराधना, दोनों हो गई। तो अरविंद ने कहा कि दोनों आराधना करने वाले मोक्ष तो पाते हैं, मगर मोक्ष के लिए उसको एसेंड करना पड़ता है यहाँ पर। अगर दोनों सिद्धियां एक ही फिजिकल बॉडी में एक ही जन्म में हो जाए, तो जिसके लिए एसेंड करना पड़ता है वो खुद डिसेंड कर जाएगा। इस फिजिकल बॉडी में वो खुद डिसेंड कर जाएगा, जिसके लिए हमको वहां जाना होता है। तब फिर जीते जी मुक्ति पा जाए। अरविंद ने इसको कहा टेरिस्ट्रियल इमॉर्टलिटी, स्वर्ग में जाना पड़ेगा, यही स्वर्ग आ जाएगा, वो ईश्वर इसी में आ जाएगा, इसी में प्रकट हो जाएगा। अरविंद ने कहा मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो यू हैव टू बिकम फाइनल कि तुम क्या हो, हैं? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उससे साक्षात्कार हो जाएगा और जन्म मरण की साइकिल से छुट्टी हो जाएगी। मेरा जीवन का उद्देश्य वही है। मगर वो समाधि लगने के लिए अब हमारे उसने कहा ना मच्छिंद्र नाथ ने कि योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो फिजिकल मेंटल को तो ये कर रहे हैं डॉक्टर, स्पिरिचुअल में आगे कर रहे हैं। तो हमारे त्रिविधि ताप शांत होता है, इसलिए डॉक्टर हैरान है कि क्या हो। अगर ये पूछेगा कि स्पिरिचुअल डिजीज क्या